Assalamu alaikum. Can you see my screen? Are you listening to me? Yes, ma'am. Okay. Now it is exercise of the language tree exercise, and it is the page number 64. So open the books on the page number 64. Have you opened? Now it is the language matters. Focus on grammar. You all have lead pencils in your hands to write to fill up the exercise. Focus on grammar, continuous present tense, also known as present progressive tense. The tense is used to talk about what is happening now. It is formed using am, is, are plus the present participle. Present participle, you mean that first form of the verb. The girl, for example, the girl is taking a picture. The men are running away. Girl is singular, so there is and are used after the men. The present participle is formed from the base form of the verb. Base form is also the first form of the verb plus ing. Note, in non-standard English, people say she taken a picture. The running away. In standard English, remember to use is or am as a helping verb. To say running, not running, running, and not taking but taking. तो इसमें जो है प्रेजेंट आपको थोड़ा सा वो इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का हम पहले भी कर चुके हैं. आपको पता है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में वो एक्शंस हैं विच आर गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ द स्पीकिंग. Actions continue at the time of the speaking in the present time. And helping verb used in the present continuous tenses is are am. I is used. Am is used after the I, and with the he, she, it, and singular noun we use is, and with I, we, you, they, and plural nouns we use are. Now there is work in pairs. There is no need of it to do. Come on the second question. Write the correct form of the continuous present tense. यहाँ पे प्रेजेंट टेंस की आपने करेक्ट फॉर्म लिखनी है. यहाँ पे पहले स्पेलिंग रूल्स को पढ़ लेते हैं. Check spelling rules for the present participle in the reference section, page number 169. Okay. Page number 169 पे जो है वो उन्होंने टेंसेस दिए हुए हैं आपको. आप अपनी बुक का अगर पेज नंबर 169 ओपन करते हैं तो वहाँ पे आपको प्रेजेंट सारे टेंसेस मिल जाएंगे. पेज नंबर 168 और 169 जो है वर्क बुक का इसका लैंग्वेज टी का उसमें आपको सारे मिल जाते हैं. ठीक है, उसमें एक्टिव पैसिव भी हैं और उसमें सारे हैं, लेकिन बहरहाल इस वक्त उसकी ज़रूरत नहीं है. एग्जाम्पल्स हैं ही स्पीक, ही इज स्पीकिंग. आपने ये जो शॉर्ट फॉर्म में उन्होंने सब्जेक्ट दिया हुआ और वर्ब दिया हुआ ना, इससे एक कंप्लीट आपने सेंटेंस बनाना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का. मैंने आगे बनाए हुए हैं, इसी तरह से आपने इस काम को करना है. ही स्पीक, ही इज स्पीकिंग. नंबर 1, वी वेव, वी आर वेविंग. शी स्माइल, शी इज स्माइलिंग. दे स्लीप, दे के साथ आर आता है, दे आर स्लीपिंग. आई ईट, आई के साथ एम आता है, आई एम ईटिंग. यू बिगिन, you are beginning. You के साथ आर आता है. They argue, they are arguing. They forget, they are forgetting. Everyone talk, everyone is talking. The car stop, the car is stopping. Who come, who is coming. I swim, I am swimming. You sit, you are sitting. So convert all these in the same. You can also write them on the copy. Question number 3.
कंप्लीट दिस डिस्क्रिप्शन विद वर्ब्स एंड इन द कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट टेंस। इस पूरे पैराग्राफ को आपने पढ़ना है, इसमें भी हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को ही ऐड करना है ब्लैक स्पेसिस में। द गर्ल इज शोइंग, शो there will be is showing in place of the show to her phone to the boy, he dash admire it, he is admiring it. Two men dash rob a jewelry shop, two men are robbing a jewelry shop. Men is plural, so we will use are, and rob will be converted into the robbing because in the present continuous tense we use ing with the first form of the verb. The girl is taking a picture with her phone. The boy and girl are studying the picture. The boy is telling the girl to go to the police. The boy and the girl are showing, because it is plural, boy and girl. They are showing the picture to a policewoman. He is looking at it carefully. Everyone reading about the crime in the newspaper. They are looking at the photo. In the photo, the police is arresting the thief. So in the blank spaces here in the question number 3, we shall write the helping verb according to the subject and with the first form of the word and ing, present participle. Okay, आपने यहाँ इन ब्लैंक स्पेसेस में हेल्पिंग वर्ब यूज करना है सब्जेक्ट के मुताबिक, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगा के इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से फिल अप करना है। वर्क इन पेयर्स इसकी भी जरूरत नहीं है, आगे बी पार्ट पे आए। आस्क एंड आंसर क्वेश्चंस। One of you takes the part of journalist and the other asks the questions. Student A, what are you doing on Monday? Student B, first I am meeting the chief of police. ये भी पेयर वर्क है, बस इसकी रीडिंग आप देखें फिर एक्सरसाइज इसकी करते हैं। Focus on grammar, continuous past tense. The tense is used to talk about unfinished actions in the past or for descriptions in the past. It is formed using was, were, the present participle. उसी चीज को उन्होंने रिपीट किया है दोबारा से कि प्रेजेंट कंटिन्यूस जो है वो पास्ट में जो कंटिन्यू एक्शंस है उनको बताते हैं। इसमें हम प्रेजेंट पार्टिसिपल was वर्ब के बाद यूज करते हैं, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ ing। 6 पार्ट पे आप आए। कंप्लीट दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ द एडवर्टीजमेंट ऑन द प्रीवियस पेज। आपने जो एडवर्टीजमेंट पढ़ी थी उसके बारे में ये है डिस्क्रिप्शन। यूज सुटेबल वर्ब्स इन द कंटीन्यूअस पास्ट टेंस। आपने इनमें वर्ब यूज करने हैं। While I was walking along the beach yesterday, I saw a lot of people. A man was taking pictures. हमें ऑब्जेक्ट से पता चल जाएगा कि हमने कौन सा वर्ब लगाना है। पिक्चर्स हमें शो ऑफ हो जाता है कि we will use the was talking। ये आपने पास्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करना, प्रेजेंट में नहीं। While I was walking along the beach yesterday, I saw a lot of people. A man was taking pictures while with his camera, while his wife dash fresh fruit juice was drinking आएगा fresh juice। A man dash food for a picnic on a table, was arranging भी लिख सकते हो या फिर was setting food for a picnic on a table। Some boys dash beach cricket, were playing beach cricket। Some girls dash in the sea, some girls were swimming in the sea। A lot of birds dash on a boat, a lot of birds were flying on a boat। The sun dashed brightly, the sun was shining brightly। So it is end of your language tree exercise। Students, now we will discuss the past continuous tense।
Now again, can you see my screen? Okay. So have your uh, rough register and lead pencils in your hands. So define the past continuous tense. Past continuous tense describes action or event in the past. Aman Amjad, you are always late. Suleiman is also late. Why? Okay. Past continuous tense describes action or event in a time before now. Event or work was continued in the past time. ऐसा काम जो माजी में हो रहा हो. उर्दू में इस फिक्रे की निशानी है कि इसके एंड पे रहा था, रहे थे, रही थी आता है. ठीक है ना. और आखिर में टेंस इस जमाने के जुमलों में ऐसे काम का बयान होता है जो माजी में चल रहा था. द वर्क कंटिन्यू इन द पास्ट. तो ऐसा काम जो माजी में पास्ट टाइम में हो रहा होता है, हो रहा था. एट एंड ऑफ द उर्दू सेंटेंस देयर इज रहा था, रहे थे, रही थी वगैरह. अब इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला हम कैसे बनाएंगे, किस तरह से इसको हम इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर विल बी द सब्जेक्ट, देन वाज एंड वर एज अ हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी, और उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट आ जाएगा. ठीक है. उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा. आप फुल स्टॉप आ जाएगा एंड पे. यहाँ आप देखें ही वॉज, ही आया है एज अ सब्जेक्ट. हेल्पिंग वर्ब ही के साथ आपको पता वॉज आता है, प्लूरल के साथ वर आता है. और उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करेंगे. ड्रॉ, ड्राइंग. ड्रॉ इज द वर्ब एंड आईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल. और अ स्केच, ही वॉज ड्राइंग अ स्केच, वो एक तस्वीर बना रहा था. सब्जेक्ट और वही इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल को एक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं. ठीक है. सॉरी, हेल्पिंग वर्ब जो है वॉज वर्ब, इनको एक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं. और इसको फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी, इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल और ऑब्जेक्ट. ये आपके लिए. अब पॉजिटिव सेंटेंसेस में आए. पॉजिटिव सेंटेंसेस को कैसे कन्वर्ट करते हैं. पॉजिटिव आर आल्सो कॉल्ड द अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंसेस. इसको आपने इस तरह से करना है कि सब्जेक्ट के बाद वॉज वर्ड लगेगा, फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल लगेगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा. यहाँ एग्जांपल्स है. ही वाज ट्रेवलिंग टू वीनस, शी वाज ईटिंग अ बर्गर, वो एक बर्गर खा रही थी. नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए आपने वॉज वर के बाद सब्जेक्ट के बाद वॉज वर और फिर नोट आ जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ जाएगा और ऑब्जेक्ट आ जाएगा. एग्जांपल्स हैं. ही वाज नॉट ट्रैवलिंग टू वीनस, वो वीनस में सफर नहीं कर रही थी. शी वाज नॉट ईटिंग बर्गर, वो बर्गर नहीं खा रही थी. और जो क्वेश्चन सेंटेंसेस हैं जिनको हम इंट्रोगेटिव भी कहते हैं, उनमें वॉज और वर शुरू में आ जाएगा, बाद में सब्जेक्ट आएगा. ये फॉर्मूला देखें. यू शुड फॉलो द सेम अरेंजमेंट. Was were will be in the start, then subject, then present participle, and first form of the verb ing, and then object. Was she traveling to Venus? Was she eating a burger? यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं और उनके यूसेज हैं. और कहाँ कहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूस यूज होता है. पास्ट कॉन्टिन्यूस इज यूज टू एक्सप्रेस एक्शन दैट वर गोइंग ऑन इन द पास्ट. एग्जाम्पल है, ही वॉज प्लेइंग टेनिस यस्टरडे, वो कल क्रिकेट खेल रहा था. पास्ट के एक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है जो पास्ट में जारी था. टू और मोर ऑन गोइंग पास्ट एक्शंस एट द सेम टाइम. कभी कभार इसमें दो या दो से ज्यादा एक्शन भी एक वक्त में हो रहे होते थे, हो रहे थे. ही वॉज वॉचिंग मूवी वाइल ही वॉज ईटिंग चिप्स, वो मूवी देख रहा था जबकि वो चिप्स खा रही थी.
ये दो एक्शंस हैं, इनके लिए भी हम पास्ट कंटीन्यूअस यूज करेंगे। टाइम एक्सप्रेशन के लिए भी ही वाज ड्राइविंग कार एट 5 PM यस्टरडे, कि कल शाम को 5 बजे वो कार ड्राइव कर रहा था। टाइम एक्सप्रेशन के लिए भी हम इसको यूज करते हैं। तो 3 तरह से इसके यूजेस आ जाते हैं। टू एक्सप्रेस एक्शन दैट वर गोइंग ऑन इन पास्ट, टू और मोर गोइंग ऑन actions, past actions at the same time, and for time expression in that past. He was drawing, मैं आपकी अटेंडेंस भी साथ साथ लिख रही हूँ, जो बच्चा आ रहा है बाद में लेट, तो इसलिए मुझे रुकना भी पड़ रहा है। ओके, ही एग्जांपल्स हैं, ही वाज ड्राइंग द ओल्ड मैन आउट ऑफ द डिच, डिच घड़ा, ही वाज ड्राइंग द ओल्ड मैन आउट ऑफ द डिच, वो खड्डे में से, घड़े में से, खाई भी कह सकते हैं, खाई में से ओल्ड मैन को बाहर निकाल रहा है, पास्ट का एक्शन है। ही वॉज राइटिंग एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, वो एक दिलचस्प कहानी लिख रहा था। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट है, उसके बाद वॉज है हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट के साथ आईएनजी लगा दिया, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है। अब क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव है, वॉज ही लिविंग इन दिस हाउस, क्या वो इस घर में रह रहा था। आई वॉज नॉट रिसाइटिंग द नेशनल एंथम, आई वॉज नॉट रिसाइटिंग द नेशनल एंथम, नेशनल एंथम है कौमी तराना। आई वॉज नॉट, आई के साथ वॉज आता है, नहीं पढ़ रहा था। जॉन वॉज ट्रेवलिंग टू वीनस, जॉन प्रॉपर नाउन है, सिंगुलर है, वॉज आएगा, ट्रेवलिंग टू वीनस, वीनस सफर कर रहा था। शी वॉज ड्राइविंग द कार, वो कार चला रही थी। यस असनात, व्हाट यू वांट टू से? असनात, यस। Excuse me, ma'am. I want to ask that how many chapters of PTB book are in our syllabus? Hasnat, I see you first time in the online class. Are you here for the first time or also attended the previous classes? No, ma'am. I have attended all classes. Okay. PTB book we have finished. I think there are 8 chapters and we have completed all the PTB English book. Some chapters. Ma'am, I have also completed till 8. Yes? I have also completed till 8. Okay, very good, very good. And language tree, we have 8 chapters of language tree and we have done the 6 chapters and 2 chapters are left. And we have only present and the past tense in the first term, and present tense is completed and now we are on the past tense, and today we are doing the present continuous, and after it tomorrow we will do the present perfect continuous and the present perfect tense. Okay, ma'am. Okay, and there are also some compositions, essay, letter, story, application, and I in the next week we will do it inshallah. Okay. ये यहाँ पे मैंने उर्दू में भी इसको लिखा है, ये देखें, उर्दू में भी किया है आपकी आसानी के लिए कि बच्चों को देखने में। अब देखें वही चीजें आ जाती हैं, यहाँ कुछ एग्जांपल्स हैं। ऐसा काम को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो पास्ट में जारी था। पास्ट में जो काम जारी था, जो हो रहा था, उसके लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस यूज करते हैं। इसमें उर्दू की निशानी वही है कि रहा था, रहे थे, रही थी वगैरह आता है। जिस तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आता है, सेम वही कन्वर्जन है इसकी। उसमें प्रेजेंट में काम जारी है और इसमें पास्ट में काम जारी था। तो इसमें उसमें हम इज़ा रैम लगाते हैं और इसमें हम वॉज वर्ड लगाते हैं। बाकी कंपोजिशन दोनों टेंसेस की सेम है। और ही, शी, इट, आई जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, उनके बाद वॉज लगेगा, ठीक है। और यू, आई, यू और जितने भी प्लूरल्स हैं उनके बाद वर्ड लगेगा। और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा।
एग्जाम्पल्स हैं, द मैन वॉज शिवरिंग विद कोल्ड, बूढ़ा आदमी सर्दी से कांप रहा था। द ओल्ड मैन, अब यहाँ पे बूढ़े आदमी के लिए ओल्ड मैन है, ओल्ड मैन इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, सो आफ्टर इट वी विल यूज द वॉज, देन देयर इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब शिवरिंग विद कोल्ड, वो अपने भाई को मार रहा था। ही वॉज बीटिंग हिज ब्रदर, ही सिंगुलर है, वॉज आएगा, बीटिंग मार रहा था। फकीर लंगड़ा रहा था, फकीर जो है बेगर वो भी सिंगुलर नाउन है तो वॉज आएगा, फकीर वॉज, द बेगर वॉज लिंपिंग। अब नेगेटिव के लिए देखें, वॉज और वर के बाद हमने नोट लगाना है, बाकी सारी कंपोजिशन सेम है। आई सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आपने हेल्पिंग वर्ब उसी तरह लगाना है, और वॉज और वर के बाद नोट आ जाएगा। मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा था, आई वॉज नॉट जोकिंग विद यू, मैं मुलाजमत के लिए इसकी सिफारिश नहीं कर रहा था। आई वॉज नॉट रिकमेंडिंग हिम फॉर जॉब, आई वॉज नॉट फेवरिंग हिम फॉर जॉब, ये भी हो सकता है। इंट्रोगेटिव में अब आप आए जरा, सॉरी, इंट्रोगेटिव में सवालिया फिक्रों में जो है इंट्रोगेटिव, जिनको उर्दू में सवालिया फिक्रे भी कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में वॉज वर स्टार्ट में आ जाएगा, और कभी कभी क्वेश्चन वर्ड होता है, जिस तरह मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट में भी बताया था, क्वेश्चन वर्ड आ जाता है, जैसे कि क्यों, क्या, WH वर्ड्स जो होते हैं। लोग लड़के खौफ के मारे क्यों कांप रहे थे, क्यों है तो हमें वाई लगाना पड़ेगा। तो इसका तरीका यह है कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद ING एंड आफ्टर इट ऑब्जेक्ट। तो लड़के खौफ से क्यों कांप रहे थे, सबसे पहले हम वाई लगाएंगे, फिर वर्ड लगाएंगे, वाई वर, फिर उसी तरह से द बॉयज ट्रेम्बलिंग विद फियर। जो अगर आपके पास सवालिया फिक्रे में क्वेश्चन वर्ड आ जाए, क्या, क्यों, कैसे, किसको, इस तरह का, WH फैमिली, तो फिर आपने उसको हेल्पिंग वर्ब से पहले लगाना है। लोग किसका इंतजार कर रहे थे, होम वर द पीपल वेटिंग फॉर। समटाइम्स फिक्रे पास्ट कॉन्टिन्यूस के सेंटेंस एक जैसे नहीं होते, लेकिन इनको अभी टेंस में किया जाता है। एक आदमी बेंच पर बैठा हुआ था, अब बैठा हुआ था जो है उसमें रहा था तो है ही नहीं, हुआ था। अ मैन वाज सिटिंग ऑन द बेंच, लेकिन इसकी ट्रांसलेशन पास्ट कॉन्टिन्यूस में ही होगी। क्या उमर और अली सोए हुए थे, वर उमर एंड अली स्लीपिंग। ये इस तरह के सेंटेंसेस हैं जो पास्ट में थे और उनको हमने पास्ट कॉन्टिन्यूस में कन्वर्ट किया। यहाँ कुछ एग्जांपल्स हैं, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ, आप मुझे ज़रा इसकी इंग्लिश करके बताएंगे। तो स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू अनम्यूट ऑल ऑफ यू and I hope you all will not make a noise and will be very attentive to your lesson and tell me the answers. मैम, Yes. मैम आज का काम आप सेंड कर देंगे ग्रुप में? जी, आज का काम ग्रुप में सेंड कर देंगे? कौन, आप अपना नाम बताएं, कौन है? मैम अब्दुल्ला जफर। अब्दुल्ला सफर, क्या कह रहे हो? यस, ओके। मदारी अपने करतब दिखा रहा था, हु विल डू इट, एनी गर्ल और बॉय। मदारी अपने करतब दिखा रहा था, जल्दी से करें इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन। यस, हरी आप। नो एनीवन इज इंटरेस्टेड। कुछ बच्चों ने खुद को अनम्यूट किया हुआ है, वो अनम्यूट करें, बाकी सबको मैंने कर दिए। यस, यस डू। मदारी अपने करतब दिखा रहा था, हु विल डू इट, हरी आप।
Yes. Mahnur, do it. Am I? Yes. The juggler was doing his trick. The juggler was showing his feats. Very good. बारिश हो रही थी. And it was raining. It was raining. Yes. वो पढ़ रहा था. वो पढ़ रहा था. हरी आप. वो पढ़ रहा था. Any boy or girl? He was reading. He was reading. Okay. मुझे नींद आ रही थी. मुझे नींद आ रही थी. Yes, students. मुझे नींद आ रही थी. I was feeling sleepy. Okay. I was feeling sleepy. Number 5. क्या शाजिया मुझसे कुछ पूछ रही थी? Yes, students. Convert it into English. क्या शाजिया मुझसे कुछ पूछ रही थी? Shazia was asking something to me. It is interrogative, so was helping verb will be in the start. Okay. Was Shazia asking me something? Okay? Was Shazia asking me something? बूढ़ा कमरे में ऊँग रहा था. ऊँगना की इंग्लिश है डोजिंग. बूढ़ा कमरे में ऊँग रहा था. Yes, students. Mara, do it. The old man was dozing in the room. The old man was dozing in the room. Very good. वो झूठे वादे नहीं कर रहे थे. झूठे वादे lame excuses. Okay. वो झूठे वादे नहीं कर रहे थे. They were not making lame excuses. They were not making lame excuses. वो तैर कर दरिया के पार जा रहे थे. वो तैर कर, तैरना की इंग्लिश है स्विमिंग, पार जाना क्रॉस करना. वो तैर कर दरिया के पार जा रहे थे. Yes, students. Any boy want to participate? Abdullah Safar. They were crossing the river by swimming. Yes. They were crossing the river by swimming. Very good. कुछ बच्चे सूखे पत्ते इकट्ठे कर रहे थे. Children were collecting dry leaves. Yes. Children were collecting dry leaves. Yes, कुछ बच्चे, some children were collecting dry leaves. Very good. What's your name? I'm Rami. Ramin is a very excellent student. Well done, Ramin. You replied me all of the sentences. Very good. Well done. A very polite and obedient student. Why you didn't respond? Why? अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उनको मैं आपको बताती हूँ. आपको मुश्किल नहीं होगी. ये आपको मैं नोट्स भी भेज दूंगी. इनको हम देखते हैं. वो स्कूल जा रहा था. He was going to school. He is a singular subject, so we will use the was. He was going to school. And go is our first form of the verb. Ing is the present participle. So going is present participle. Present participle means that first form of the verb with ing. Then object. मैं इसे पढ़ा रहा था. I was teaching him. I is also singular subject, for so we use was. Teaching him. सो रहे थे. You were sleeping. You is also a singular subject. But you and I, they always have. I have the was, but we use were after the you. You और I ऐसे हैं कि जो हैं तो सिंगुलर, लेकिन प्रेजेंट डेफिनेट में भी हम वर्ड लगाएंगे इसमें पास्ट कंटिन्यूअस में भी. बारिश हो रही थी. was raining. बच्चा नहीं सो रहा था. The child was not sleeping. यहाँ पे हम नेगेटिव में देखें कि हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाया है. The child is our subject, then helping verb was,
एंड देन नोट। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नोट लगाया है और फिर स्लीपिंग, द चाइल्ड वाज नॉट स्लीपिंग। क्या नौकर झाड़ू दे रहा था, ये इंट्रोगेटिव है, इसमें हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाएगा। वाज द सर्वेंट स्वीपिंग, झाड़ू दे रहा था। वाज द सर्वेंट स्वीपिंग, तुम वहां क्या कर रहे थे, तुम वहां क्या कर रहे थे। नाउ इट इज क्वेश्चन वर्ड, वहां के लिए वी हैव टू यूज द क्वेश्चन वर्ड। So question word will be in the start of the sentence, then there will be the helping verb. So before helping verb we will use the question word. अगर कैसे हो, मैंने भी आपको बताया था कि कैसे, कहाँ, किसको, क्यों, कौन, इस तरह का क्वेश्चन वर्ड होगा तो हमने हेल्पिंग वर्ब से पहले लगाना है व्हाट, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा वर, व्हाट वर यू डूइंग देयर। बाकी सारी कंपोजिशन सेंटेंस की उसी तरह से होगी। वो मुझे बुला रहा था, he was calling me, was for the he, singular subject। हम सर्दी से कांप रहे थे, वो is plural, so we will use the verb, we were shivering with cold। shiver is the first form of the verb, ing as a present participle। जानवर खेतों में चर रहे थे, the cattle were grazing in the field। okay, grazing चरना, graze is the first form of the verb, then there is ing as a present participle, were grazing। cattle जो है अब एंड पे हमें देखें, यहाँ से हमें पता चलता है जानवर खेतों में चर रहे थे से कि ये प्लूरल है, तो हम इसमें द कैटल जो है वो एक कलेक्टिव नाउन है लेकिन प्लूरल फॉर्म में होता है। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी did the exercise of the language tree and also division of this tense। It is your homework, I am writing your homework and note it। Write 15 sentences of past continuous from your imtiazi book। okay, 5 negative, 5 positive and 5 interrogative। So students, it's your homework that write the 15 sentences of the past continuous tense from your imtiazi translation book। आपने 15 सेंटेंसेस अपने इम्तियाजी की ट्रांसलेशन बुक से करने हैं, 5 नेगेटिव, 5 पॉजिटिव एंड 5 इंट्रोगेटिव। ओके, एंड डू योर होमवर्क बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आल्सो send me pics so I can check it, and be vigilant to your work, and also revise and read the exercises of the language tree which we did today। okay, any question if you have? Yes, any question? No? Yes, Myra. Myra, unmute yourself from your side. Yes. Reply. Then we have to done this on our neat copies or rough copies. Yes. Your voice is very slow. We have to done our homework on loose बोले ऊंची थोड़ा सा. Speak aloud, please. ऐसा करें, राइट करें वहां पे, चैट में राइट करें, मैं देखती हूँ, राइटिंग करें यहाँ पे। यस मायरा, राइट इन द राइट हेयर।
Students, our English syllabus is almost near to end. We have covered the PTP English book and also on left. Myra, write your answer question for our session and we have to do our homework on our neat copies. Yes, on the neat copies. Yes, Myra, you will write it on the neat copy. All the exercises of the tenses you have to write on the neat copies, okay? And also send. मैम हम आपको काम जी अपने सेपरेट भेज दें, आपको काम सेपरेट नंबर पे आपके भेज दें? ठीक है, सेपरेट नंबर पे आप मुझे भेज दें, ठीक है? सेपरेट पे भेज दें, मैं उसको चेक करूंगी, ठीक है? देखूंगी आपकी मिस्टेक्स वगैरह आप भेजा करें वो जरूर। आपका देखें ये जो टेंस है ना, इसकी कन्वर्जन जो है ना, इसमें बच्चे अक्सर गलती कर जाते हैं, तो आपने ये मुझे भेजना है ताकि मैं देखूं कि आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही। यहाँ पे रिस्पॉन्स सिर्फ 1-2 बच्चे देते हैं, गर्ल्स देती हैं, बॉयज कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, ठीक है? तो कल जो है वो पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस करने की कोशिश करेंगे, या फिर आपको बोर्डम से बचाने के लिए मैं पास्ट परफेक्ट करवाऊंगी और उसके साथ आपको लैंग्वेज टी जो है वो थोड़ा सा करवा दूंगी। और हो सकता है कि हमको इंग्लिश बी की कंपोजिशन कल कर लें, क्योंकि आपके ऐसे स्टोरी लेटर एप्लीकेशन अभी रहते हैं जो हमने डिस्कस नहीं किए। ओके, सो हैव अ नाइस डे एंड टेक care yourself, stay home, stay safe, and also do hard work on your studies. Okay? Yeah. Okay, goodbye. मैम Yes. मैम आज का काम आप सेंड कर देंगे ग्रुप में? हाँ जी, मैं चेक करूंगी और मैं आपको अभी नोट सेंड करती हूँ, उसके बाद काम आप मुझे सेंड करें रात तक और मैं उससे चेक करूंगी, ठीक है? यस फातिमा, व्हाट यू वांट टू से?